گے پینڈیمک کووڈ-19 کے حوالے سے، جس کی دوسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا ہوا بے قابو، 24 گھنٹوں میں مزید 44 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 8,303 ہو گئی، مزید 3,119 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریض 4,13,191، 3,52,529 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 41,115 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 57,13,341 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 1,80,904، پنجاب میں 1,22,293، خیبر پختونخوا میں 48,683، اسلام آباد میں 31,992، بلوچستان میں 17,392، آزاد کشمیر میں 7,219 اور گلگت بلتستان میں 4,708 افراد کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران سندھ پولیس کے متاثرہ اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سینئر پولیس افسر ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس آصف اعجاز شیخ بھی کرونا کا شکار۔ آصف اعجاز شیخ کلپٹن کے ایک نجی اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں، جہاں انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ اہل خانہ کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی اپیل۔ محکمہ صحت پنجاب کا لاہور کے بڑے اسپتالوں کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا ایکسپو فیلڈ اسپتال کو دوبارہ فعال کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپو سینٹر کے ہال نمبر 2 کو کرونا مریضوں کے لیے فوری فعال کر دیا جائے۔ آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنے والے مریض فیلڈ ہسپتال میں داخل ہوں گے۔ لاہور کے 4 بڑے اسپتالوں کو ہائی ڈسپینسری یونٹس اور ICU فعال رکھنے کی ہدایات۔ میو ہسپتال، سروسز جناح اور لاہور جنرل ہسپتال کو کرونا کیسز کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید بھی بات کریں گے کووڈ-19 کی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 15,24,000 ہلاکتیں، 6,62,00,000 مریض، امریکہ میں 2,85,000، برازیل میں 1,75,981، بھارت میں 1,39,736، میکسیکو میں 1,08,863، روس میں 42,252، فرانس میں 54,767 اور سعودی عرب میں 5,940 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 2,85,550 اموات اور 1,47,72,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,39,736 اور 96,08,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,75,981 اور 65,34,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ فافن اور ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی کرونا پر پہلی رسپانس مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ فافن رپورٹ کے مطابق سیاست بازی اور کرونا وائرس سے متعلق متعارف کرائے گئے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنا چیلنج بن سکتا ہے۔ روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے مزید سنجیدہ اور خصوصی اقدامات ناگزیر ہیں۔ فافن رپورٹ کے مطابق فرنٹ لائن پر کرونا کا مقابلہ کرنے والوں اور دیگر متعلقہ شراکت داروں کے استعداد کار کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ کرونا ٹیسٹوں کے فقدان، قرنطینہ کی صلاحیت اور وینٹیلیٹر جیسی اہم ضروریات کی شدید کمی کا خدشہ ہے۔ ادھر کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے کراچی کے مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
कराची के जिला गरबी के 13 इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बल्दिया टाउन, औरंगी, गडाप और केमाड़ी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। इस्लाम नगर, सैदाबाद, महाजिर कैंप, मुअम्मराबाद, यूसुफगोर, केमाड़ी, दाता नगर में भी लॉकडाउन होगा। हनीफाबाद, पाक कॉलोनी, मेट्रोविल, बवानी चाली और फ्रंटियर कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ऑप्शन माफ नहीं करूंगा, ऑपोजिशन के जलसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा, पीडीएम के जलसों में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अभी आपको बताएं कि सियासी जलसों पर पाबंदी और दीगर हिफाजती इकदाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। कोरोना के शदीद फैलाव की वजह से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। आलमी वायरस से बचाव के लिए जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत से इस्तदा की गई कि अस्पतालों में फार्मेसिस्ट को 24 घंटे खुला रखा जाए। सीनियर प्रोफेसर की रात के औकात में कोरोना वार्ड में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि लवाहिकीन को मरीज की हालत के बारे में आगाह किया जाए और वीडियो कॉल्स की सहूलत भी यकीनी बनाई जाए। अगर इन इकदामात को यकीनी ना बनाया गया तो तशवीशनाक हद तक हलाकतों का खतरा है। जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने का मशवरा देते हुए कहा कि इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। शहबाज शरीफ की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के माबैन होने वाले इंतहाई अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। मुस्लिम लीग नून के तीनों रहनुमाओं में होने वाली मुलाकात में पीडीएम के लाहौर में होने वाले जलसे से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 13 दिसंबर को हुकूमती कोरोना का इलाज करेंगे। नवाज शरीफ को मशवरा है कि सेहतियाब होकर वतन वापसी का फैसला करें। मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं। मरियम नवाज पार्टी को लीड कर रही हैं और हम सब उनके साथ हैं। नून लीगी रहनुमाओं पर हुकूमत ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम असम्बलियों से मुस्ताफी होने का फैसला करे, हमारे इस्तीफे हाजिर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अंधा इंतकाम इस वक्त भी जारी है। पहले ऑस्ट्रेलिया में 2 अरब की जायदाद का इल्जाम आयद किया, मेरे खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, मेरे खिलाफ बयान के लिए फैसलाबाद से मुनशियात फरोशों को बुलाया गया। दबाव डालने के बावजूद मेरे खिलाफ एक गवाह ना मिल सका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम के मुस्तरद शुदा अनासर तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, सियासी मामलात और टाइगर फोर्स के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरान सियालकोट के इंतजामात के बारे में बातचीत की। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि सियासत आवाम की बेलोस खिदमत को कहते हैं, ना कि इंतशार और अफरा तफरी फैलाने को। आम आदमी के मसाइल से उन लोगों को कोई वास्ता नहीं। हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए इकदामात कर रही है। बदकिस्मती से पीडीएम जलसों के जरिए कोरोना फैल रहा है। इन अनासर की किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। आपको एक बार फिर बराह रास्त
कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। जमहूरी और अस्करी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी वफाकी वजीर असद उमर, DGISI जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर कराची और दीगर मौजूद थे। फैसला किया गया कि महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिज़ाइन की मंजूरी का अमल शुरू किया जाएगा। गुज्जर और औरंगी नाले की सेटडी और डिज़ाइन 15 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। केफुर मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए विफाक वाबडा से भी मदद लेगा। मुराद अली शाह का कहना था कि NED से तमाम अहम नालों की सर्वे करवा रहे हैं। कराची में सफाई से मुतल्लिक़ खास मुहिम शुरू की जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि तजावुज़ात सिंध हुकूमत ने हटानी हैं। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। NDMA को 700 अरब रुपए के लिए मुजाज बनाना होगा। उनका मजीद कहना था कि जो भी खर्चा होगा वफाकी हुकूमत करेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ है। वजीर आज़म सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें। बल्दियाती निज़ाम से ही सूबों में तरक्की आती है। वजीर आज़म अवाम को इनकलाब के सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। अवाम को इनकलाब के सुनहरे ख्वाब कौन ताबीर देगा? सूबों के मसाइल ब्यूरोक्रेसी के जरिए हल कराए जा रहे हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरी माशाल्लाह है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जमहूरी आमरीत है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हल्का बंदियां नहीं हो सकती। वज़ीर आला आमिर बन गए, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं खुसूसी अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं। ऐसे अफराद को सहूलियात देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने अपने ट्वीट में कहा कि बरसों से पंजाब पर मुसल्लत हुक्मरानों ने मुल्की मईशत, इदारों और सियासी निज़ाम को तो माजूर किया, मगर माजूर अफराद के लिए खातिर ख्वाह इकदाम ना उठाए। बुज़दार हुकूमत खसूसी अफराद के लिए अमली इकदाम करते हुए सरकारी मुलाजमतों में मुख्तस 3% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बना रही है, जबकि 580 डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिली का आगाज भी हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं आइंदा इलेक्शन में यूथ के जरिए पोलिंग बूथ पर सरप्राइज देंगे। जमहूरियत के नाम पर जिद्दोजहद करने वाली नाम नेहाद सियासी पार्टियां समाज और जमहूर का मजाक उड़ा रही हैं। जमात इस्लामी यूथ बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा 73 बरसों में जुल्म शाफिया ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं होने दिया। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त है। बेरोजगारी ने मुल्क में डेरे डाल लिए। PTI ने नौजवानों को धोखा दिया और बंद गली में धकेल दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाली अक्सर पार्टियां खुद जमहूरियत के तसव्वुर से ना आशना है। मगरबी इस्तेमार के एजेंटों ने आवाम को गुर्बत और बेरोजगारी के तोहफे दिए और मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। हर इलाज का दावा करने वाले अताइयों ने मुल्क को मफलूज कर दिया। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जुबैद इकबाल कहते हैं नैब लूटे जाने वाले 466 अरब रुपए बरामद कर चुका, करप्शन के खात्मे के लिए कोशा है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। इस मौका पर जुबैद इकबाल का कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 20 बरस से नैब के साथ काम कर रहा है। चेयरमैन नैब ने कहा कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस का मायार बेहतर किया। सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम मुतारिफ कराया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 10 अरब रुपए की लागत से LDA-सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के पहले मरहले में 4000 रिहायशी यूनिट तामीर करने की मंजूरी दे दी है। LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि अपार्टमेंट्स मोजा हलूकी में 563 केनाल अराजी पर 1 साल में तामीर किए जाएंगे।
4 मंजिला अपार्टमेंट्स के 125 ब्लॉक तामीर किए जाएंगे और हर ब्लॉक 32 रिहायशी यूनिटों पर मुश्तमिल होगा। अपार्टमेंट्स तामीर करने के लिए मुख्तस किए जाने वाली 8,500 केनाल अराजी पर सड़कें, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, फुटपाथ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने का भी फैसला किया गया है और इस मकसद के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए के PC1 की मंजूरी दी गई है। मजीद बात करें तुर्की की तो तुर्की में गैर कानूनी मुकीम 22 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी परवाज TK 710 के जरिए इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। 11 अफराद को इमिग्रेशन के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। 11 अफराद को FIA के इंसदाद स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया गया। कबल अज़ीं तुर्की ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 30 पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया था। पाकिस्तानी शहरी परवाज TK 710 के जरिए इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी की तुर्की के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में अहम मुलाकातें। नेवल चीफ ने टर्किश फ्लीट हेडक्वार्टर्स और नेवल शिप यार्ड्स का दौरा भी किया। पाक बहरिया के सरबराह को टर्किश फ्लीट कमांड से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आपको बताएं कि पाक बहरिया के सरबराह ने तुर्की का दौरा किया है, जहां पर उनकी आखिरी रोज अहम मुलाकातें करवाई गई हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी की तुर्की के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में अहम मुलाकातें। नेवल चीफ ने तुर्किश फ्लैट हेडक्वार्टर्स और नेवल शिप यार्ड्स का दौरा भी किया। पाक बहरिया के सरबराह को तुर्किश फ्लैट कमांड के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।